Thanks, Sipakazi. Hi, Kish. Tough day out there. Can you just tell us a little bit about bowling to Fawad Alam? He has quite an unusual stance, and what sort of adjustments do you have to make when you're bowling to someone like that? Yeah, obviously it's not something that you're used to. It's not conventional. It does take a few balls to adapt because you're constantly focusing on him. But yeah, I think you just stick to your lines and lengths. I mean, yeah, at the end of the day, when the ball's about to be delivered, he is still in a neutral position like most batters. So from that point of view, it's not too much to look into. Khalid followed, Ken followed by Khalid H. Khan. Thank you. Hi, Kesha. Tough day out there for the bowlers. It seemed you guys put a lot of effort in, but how difficult is it for you guys when it just seems a bit flat in the field? I mean, I don't know what the bowlers felt, but certainly watching it, it seemed like the fielders really weren't giving you guys enough intensity, and it just didn't seem that any pressure was really created backed up in the field. Yeah, obviously, catches and things like that go down, and it's expected in cricket. No one means to put a catch down. I thought we fielded pretty well. Yes, there's slumps in the game, but I thought it was a sort of decent day nonetheless. One thing we did manage to do is obviously control the rate really well, and fair play to Fawad. He played extremely well. It just absorbed us. It's not a wicket that's giving you too much. So, from that point of view, I thought we did a really good job as a bowling unit. Thanks. Khalid, Rashid, Aram, and Okay. Can you hear me? Yes, I can. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. As you see the surface over the 2 days, do you think it's going to get better and better for batting, or do you think there will be problems arising batting last or in the third inning? I think the wicket still looks pretty good. I just think it's important that tomorrow we sort of come and hopefully get those last 2 wickets quickly, and then our batters try bat as long as possible. I mean, you never know how the pitch is going to deteriorate to come the end of day tomorrow, but I think it's actually still a good wicket. I mean, Fawad just showed if you just put a bit of application and you can bat long and score runs. It's simple cliche of Test cricket. You invest, and at some stage you're going to get runs. But to answer your question, I think it's still a decent wicket. I'm not quite sure if it's going to deteriorate yet. There's still some foot marks from the bowlers, but that's just through wear and tear. But for now, it seems like it's still a good wicket. Rashid? All right, we'll go on to Aram and then Stuart Hess. Okay, Stuart. Sure. Hi, Kish. Just on before the game, before the test match started, Mark Boucher had spoken about you having made a couple of technical changes or working on some technical things. I was wondering what those were, and what is it that you were trying to achieve by making these changes? It's just a small thing of alignment. I felt I was collapsing a bit at the crease, so it's obviously to stay a little bit more taller at the crease. To obviously help with the shape on the ball for consistent periods of time. So nothing too major. And then just in terms of mindset and approach was more what we spoke about. Apologies, everybody. I seem to have lost my connection. So I'm trying to see the chat panel again. Can I open on my one? No, it's fine. Okay, Telford. How's it go, Shaf? I just wondered, were you surprised that the pitch didn't seem to turn nearly as much as it did yesterday when you came out and bowled in it today? It seemed almost like in South Africa sometimes the fast bowlers bit creepy, or they didn't turn as much. Yeah, I think we didn't expect the ball to turn much. Obviously, day 1, 2, and 3 from a traditional cricket in Karachi.
So I think it's played as what we expected it to be thus far. And hopefully, as the game goes on, we'll see through wear and tear a little bit more turn. But from the straight, it didn't turn too much. I think obviously when the footmarks were in play, it did turn like a normal test wicket. But yeah, it didn't turn as much as one would have thought it would have, having seen Yasser Shah. But with all due respect, Yasser is a wrist spinner compared to a finger spinner, so he does get a lot more revolutions on the ball. Danielle, followed by Muzamil. Hi, Keshav. It had obviously been a long and frustrating day by the end, but do you by any chance have a clue about what happened regarding the nature of the disagreement between Hassan Ali and the captain, Quinton de Kock? Do you know what happened there? No, not at all. I was on the other side of the field, so I can't really comment on that. And just one follow-up around that. Could you talk to us about the strategy surrounding the second new ball? Because it seemed like while the fast bowlers had a lot of success yesterday, it seemed like South Africa, you guys wanted spin to be more involved with the second new ball. Was that just fatigue, or was there a strategic idea behind that? No, we just thought that maybe the new ball might give a little bit more turn and bounce off the wicket, because obviously the ball gets soft really quickly due to the hardness of the wicket. So it was more a strategic move. I think our bowlers are fresh and always willing to bowl. So yeah, definitely more strategic move than a fatigue. The final question with Muzamil. Muzamil? Hello, this is Muzammil Asif from ARY. I just want to ask that Fawad Alam, it was his home ground and he has scored plenty of runs here. It looks like you guys were trying to trap in his legs. Like initially you were trying to bowl in his leg. So what was? Sorry, we lost the person asking the question. Was that Muzamil? I'm asking, can you hear me? Yes. Start again. I'm asking that it was Fawad Alam's home ground and he has scored plenty of runs here. I just want to ask that initially it looked like you guys were trying to trap him in his legs. So what was your initial plan to get rid of him? Yeah, well, I don't think we were trying to hit his pads. We saw that he does flick the ball up in the air, and there were a few opportunities that presented itself. It just fell in no man's land, and yeah, I think that was our plan to him, especially seeing that. But yeah, there were a few catches put down, and half chances here and there. But I suppose he just composed himself and put the shots away and played really well. So fair play to him, and we have to come up with some other plans come the next innings and obviously for the second test match. Keshav, we've got one last question on text. It says, yesterday Dean Elgar said at the end of day's play that South Africa were on top. Would you say that the game is evenly balanced at the end of day 2? I think obviously the Pakistan team has a little bit of a lead, so I'll probably give a little bit more to them. Having said that, I don't think we were far behind in terms of who wins the day, simply because we control the rate. We didn't let the scoring get out of hand, and we're still under 3 runs and over. So, hopefully tomorrow we can rack the 2 wickets up and put, a substantial score on the board and hopefully turn the test match around to, put ourselves in a position to win this test match. Thanks very much, everybody. We'll see you tomorrow. Time है पे short हम questions कुछ लेंगे. पहले हम उर्दू question लेंगे, then we will come to the English question, please. थैंक यू जी. फवाद, कैसा देख रहे हैं अपनी इस इनिंग को, क्या कहेंगे प्लीज? ज़बरदस्त इनिंग थी, टीम को नीड थी, और क्योंकि जिस तरह का प्रेशर था, जिस तरह से मतलब 30 मैचेस पे हमारे 4 आउट हुए थे कल, तो कोशिश यही था कि जितना लंबा कर सकते हैं और जितना लेके जा सकते हैं, जितना रन्स बोर्ड पे लगे रहें उतना अच्छा हो, क्योंकि अगली इनिंग भी आनी है, क्योंकि मैच अभी फुली ओपन है. सो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और सेंचुरी. जी क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे. जी खालिद भाई, देन माजिद भाई एंड देन वहीद भाई, प्लीज. तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह आपने इतनी जबरदस्त इनिंग खेली. ये बताइए कि जब शाम को आप जब होटल गए और फिर रात भर आपने इंतजार किया, तो क्या जहन में चल रहा था और क्या इस इनिंग को कहाँ रेट करते हैं? अपने 3 सेंचुरी में या जो भी टेस्ट मैच खेली आपने, इस इनिंग को कहाँ रेट करते हैं और जहन में क्या चल रहा था शाम को?
भाई आपकी आवाज जो शुरू वाला सवाल था ना वो समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत बबलिंग वाला आया। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि जैसे कल शाम को जब आप लोग के बाद होटल गए, 33 को 4 पाकिस्तान इन डीप ट्रबल, तो फवाद आलम और नाज़िर अली के ज़हन में क्या चीजें चल रही थी? फिर सुबह आके आपने इस तरह कमबैक किया और फर्स्ट लाख ओवर सेंचुरी की, तो इस सेंचुरी को कहाँ रेट करते हो? कल जिस सूरत हाल थी उसको क्या ज़हन में चल रहा था रात भर? अबे रात भर तो आप समझ सकते क्या जहन चल रहा होगा जहन में। जहाँ तक इनिंग की बात है और जहाँ तक सिचुएशन की बात है, कल 36वें मतलब कि 35 में हमारे 4 आउट हो गए थे। सो मुश्किल सिचुएशन थी और वो कहते हैं टीम को नीड भी थी और एक पार्टनरशिप चाहिए थी आपको, ताकि आपकी बेस बन जाए, ताकि आगे आने वाले बैट्समैनों के लिए थोड़ा ये होता है वो भी पार्टनरशिप करेंगे। तो अब हमारी कोशिश यही थी कि रन के करीब करीब हम लोग पहुंचे, जितने जो साउथ अफ्रीका ने रन किए हुए हैं। और जब हमारे 4 आउट हो गए थे तो राजू और मेरी भी यही बात हो रही थी कि यार जितना हम क्लोज लेके जाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि चौथी इनिंग भी आनी है, टेस्ट मैच ओपन है, अभी पहला दिन ही हुआ है, दूसरा दिन है, तो मैच सेकंड इनिंग भी आनी है, तो चौथी इनिंग होगी वो हमारी। तो हम जितना क्लोज करेंगे उतना हमें फायदा होगा, ताकि जब हम उनको आउट करेंगे तो हमें ज्यादा रन ना बनाने पड़े, हमारे उतने लिमिट्स में ही रन है। तो हमारी सिर्फ ये कोशिश थी कि जितना लंबा इसको लेके जाएं, जितनी पार्टनरशिप लगा सकें और जितना हम जो है वो लीड को कम करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उसी करते करते अल्लाह ने हमें लीड दिलवा दी। वहीद भाई और इंटरनेट लाउड ही चल रहा है। माजिद भाई आपका माइक म्यूट है, प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा। माइक म्यूट है। बहुत ही थर्ड क्लास इंटरनेट है यार। जी माजिद भाई आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए आप। ये वाली आवाज आ गई आपकी? आ रही है मेरी आवाज? जी जी थर्ड क्लास वाली आ गई। नहीं, वो वही का फवाद, बहुत शुक्रिया, मुबारक। तो बहुत ज्यादा आपने फवाद कराची में क्रिकेट खेली और जाहिर है पहली बार टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सके इससे पहले कराची में। तो आज क्या फीलिंग्स है कि अपने होम ग्राउंड पे अपने घर के पास टेस्ट सेंचुरी बनाई और ऐसे मौके पे जबकि पाकिस्तान टीम फंसी हुई, तो ये क्या फीलिंग्स है कराची में सेंचुरी बनाने? तो माहिद भाई फीलिंग्स बहुत ज़बरदस्त हैं, आपको पता है, क्योंकि 100 करना और पाकिस्तान की तरफ से 100 करना, एक तो ये तो बड़ा ही बहुत बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग होती है। ये आपकी ड्रीम होती है कि आप पाकिस्तान से जब खेलो तो आप सेंचुरीज बनाओ और ऐसी सिचुएशन में आके आप परफॉर्म करो जब आपकी टीम को नीड हो बहुत ज़्यादा। सो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ कम है उसका। और जहाँ तक ये सेंचुरी की बात है, जहाँ तक इंपॉर्टेंट बात है, सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने हैं। और बस वो कहते हैं ना कि अपने कोशिश कर रहे थे कि अपने आप को अप्लाई करें, जितना अप्लाई कर सकते हैं करें करें, क्योंकि विकेट्स जैसे आपने बोला कराची में खेले, और जब ये टेस्ट मैच आ रहा था तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज थी, ये था कि खेलूंगा मैच, तो यही था कि मेरा एक तरह से डेब्यू था पाकिस्तान में। एक तरह मैं अभी तक टेस्ट मैच नहीं खेला पाकिस्तान में, तो मैं पाकिस्तान में पहला टेस्ट मैच खेला हूँ, वो भी कराची में। तो अल्लाह से मैंने ये मांगा था कि अल्लाह पाक बस इज्जत देना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने बहुत अच्छी इज्जत। शिवेद भाई देन उमर। फवाद आवाज आ रही है मेरी? जी जी। फवाद, न्यूजीलैंड में 37 पे 3 जब आप गए खेलने, यहाँ पे 27 पे 4, तो मतलब ये जो मेंटली इतना स्ट्रांग है, ये कितना फैक्टर आपके मतलब काम आया कि मतलब टीम से बाहर भी हुए, इतना अरसा 10 साल नहीं खेले, लेकिन ये मेंटली जो इतना स्ट्रांग है। और दूसरा ये कि आप क्या ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए, और एक जो बेयकीनी है कि क्या फवाद अगला टेस्ट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, आपने अपनी परफॉर्मेंस से इस चीज़ को बिल्कुल दूर कर दिया है। अब देखें, जहाँ तक अगले टेस्ट मैचेस खेलने की है, जहाँ तक उधर मैं मैनेजमेंट का बड़ा कहूँगा, क्योंकि जो कोच हैं उन कभी भी उनकी बातों से या जब भी उन्होंने इनकरेज ही किया उन्होंने, कि कभी ऐसे नहीं लगा। इंग्लैंड में अगर आपने देखा होगा तो 2 इनिंग्स मेरी खराब गई, अगर ऐसा होता शायद मैं बाहर भी हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको बिलीव था मेरे पे, उनको पोटेंशियल उनको पता थी। तो ये था कि वो उन्होंने चांस दिया, न्यूजीलैंड में भी दिया, जैसे आपने कहा कि 30 पे 3 आउट हुए, उस तरह हुआ, इधर हुआ। तो मेरे ख्याल से उधर से बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है मैनेजमेंट की तरफ से। वो कॉन्फिडेंस जो है ना, आप फिर अंदर लेके जाते हो कि जब आपने ही बात की कि अगला खेलेगा नहीं खेलेगा, तो वो जो एक जो विंडो होती है ना, वो क्लोज हो जाती है, वो वाली कि अगला खेलना है या नहीं खेलना, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको मैनेजमेंट की तरफ से मिलता है। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो मिला है, मिसबा भाई ने दिया है। और क्योंकि उन्होंने यही बोला है कि तुमने ही खेलना है, और ये है कि आप ही करोगे, और मुझे बिलीव भी है कि आप करोगे। तो आई थिंक ये
छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें होती हैं जो अगर आपकी मैनेजमेंट की तरफ से आए तो वो आपको बैंक ऊपर ले जाती हैं, क्योंकि आप फिर सारी चीजें छोड़ के आप अपना फोकस सिर्फ क्रिकेट पे करते हो और आप कोशिश करते हो कि जो आपको आता है वो डिलीवर करो और आप परफॉर्म करो पाकिस्तान के लिए। जी वहीद भाई एंड देन उमर प्लीज। फवाद मैं ये पूछ रहा था कि एक तो ये कि मुझे बता सकते हैं कि यूनुस खान ने एज बैटिंग कोच ज्वाइन किया पाकिस्तान टीम को इन इंग्लैंड, तो एक तो ये मुझे आप बता सकते हैं कि यूनुस खान के ज्वाइन करने के बाद क्या आपको लगता है कि बहुत फ़ायदा हुआ है जो बैट्समैन है टीम में, और किस तरह से यूनुस खान मतलब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आप लोग को जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जो न्यूजीलैंड में आपने रन्स किए, डू यू थिंक कि जब यहाँ पर आपने आके टेस्ट खेला है तो वो जो न्यूजीलैंड में आपने रन्स किए वो जो कॉन्फिडेंस था उससे आसानी हुई यहाँ पर आपको मतलब रन्स करने में? भाई तो पहले तो ये सेंचुरी और ये कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ। देखें, आप एज अ प्लेयर आपकी ख्वाहिश होती है और आपकी कोशिश होती है कि आप हर मैच में डिलीवर करें, जो हो गया वो हो गया, क्योंकि जाहिर है फिर आपकी बात जब भी बात होगी तो अब जो आप करके आए हो उस इनिंग की बात होगी, जो आपने पीछे कर दिया उस इनिंग की बात नहीं होगी। सो एज अ प्लेयर मेरी कोशिश यही होती है कि जो इनिंग्स मेरे पास आए मैं उसको अवेल करूँ और जितना परफॉर्म कर सकता हूँ, जितना डिलीवर कर सकता हूँ उतना करूँ। और जहाँ तक आपने दूसरी बात की यूनुस भाई की, यूनुस भाई का मेरे ख्याल से आपको पता ही है लेजेंड है, हमारे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं, और ऐसे बड़े प्लेयर के साथ काम करना, मैं तो कप्तानी में भी खेला हूँ उनके साथ एज अ प्लेयर, वो थे जब भी खेला हूँ, तो वो हमेशा कॉन्फिडेंस देते हैं बैट्समैनों को, और वो यही है कि वो पहले हमारी सुनते हैं और फिर उसी में अपने आप को जो है डाल के हमारी जो चीजें होती है, जो जरूरत होती है वो पूरी करते हैं। आई थिंक वो जो छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ट्यूनिंग की जरूरत होती है। आई थिंक यूनुस भाई बहुत अच्छी हमारी है कि जो थोड़ा जहाँ पर हम फंसते हैं वहां पर जाके हम खुद बात करते हैं। वो कहते हैं जब आपको मसला हो जब आके मुझसे बात करो, तो मैं आपको वो कोशिश करूंगा कि वो दूर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम जाते हैं, जब भी हम कोई चीज उनसे पूछते हैं तो उनके मुंह पे मना नहीं होता और वो हमारी तरह ही हमें समझाते हैं। सो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि वो यूनुस भाई की तरह नहीं समझाते, यूनुस खान की तरह नहीं समझाते, वो हमारी तरह ही हमें समझाते हैं, उसी तरह लेके चलते हैं, जो हमें बहुत फायदा होता है उस चीज का। मुझे तो बहुत होता है और जितने बैट्समैन हैं उनको भी बहुत होता है, वो क्योंकि वो यूनुस खान बन के नहीं समझाते, वो हमारी तरह ही समझ के समझाते, तो ये इससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। और जो चीजें हमें चाहिए होती हैं वो हम कोशिश करते हैं कि जो वो बताते हैं, जो भी ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो उनसे मिलती है, उसको जो है हम जो है अपने दिमाग में रखें और वो अप्लाई करें अंदर। जी उमर, देन शुएब, देन फैजान। ओके फवाद, जैसे जैसे आप रन्स कर रहे हो तो आपका जो 10 साल का टाइम जो आपका जाया हुआ है उस पर फोकस बार बार जा रहा है। आज भी डिस्कशन में यही रहा है कि वो 10 साल फवाद के जाए हुए। तो आप थोड़ा इमोशन शेयर करो कि आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, एंगर आता है कि आपको अपने पीस कर लिया है कि मेरे 10 साल जाए हुए, आई एम पीसफुल नाउ, अब जो मुझे मिलेगा मैं चलूंगा। वो इमोशंस क्या होते हैं जब आप रन्स करते हो? देखिए, अगर आपने देखा हो कि जब भी मीडिया से बात की है, मैंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैंने ये कहा कि मेरे नसीब में नहीं था इसलिए मुझे नहीं मिला। अल्लाह ने जब मेरे नसीब में लिखा होगा तो जब मुझे हर चीज़ मिलेगी, तो मैं उसी चीज़ को लेकर चल रहा हूँ और अभी भी उसी चीज़ को लेकर चलता हूँ। मैं ये नहीं सोचता 10 साल हो गए, आप कोई नहीं होते कि हमें नहीं पता चलता क्या चीज़ मिस हुई, क्या चीज़ हम पाएंगे या क्या हमें आगे मिलना है। ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मेरा जो बिलीव है वो अल्लाह पे है, अल्लाह की रस्सी मैंने पकड़ी हुई थी और अभी भी पकड़ी हुई है, उसी को लेकर चल रहा हूँ। जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा जरूर और मेरा फोकस उसी पे होता है। जो मिले उसको अवेल करो, चाहे वो आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे होते हो, क्योंकि हमारा ब्रेड एंड बटर यही है और हमारे पास कुछ नहीं है। तो जो मिले उसमें आप परफॉर्म करो। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह अगर देर है अंधेर नहीं है, सो आपको मिलता जरूर है लेकिन आपका जब टाइम आएगा, वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं जब टाइम आएगा, हम दुआ यही मांगते हैं ना कि अल्लाह पाक जो मेरे हक में बेहतर हो वो करे अल्लाह ताला, और जब टाइम हो जब करे। तो वो अल्लाह का शुक्र है, मैं अभी भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ। और ये 10 साल को नहीं सोचता मैं कि ये जाया ये कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अगर आप देखें तो डोमेस्टिक में जितने रन्स अल्लाह ने करवाए हैं, जो रिकॉर्ड्स बनवाए हैं, उसका मैं शुक्र अदा करूं तो वो कम है, तो मैं इन 10 साल को कैसे कहूं कि मेरे वो जाया हुए हैं। अल्लाह ने उसमें बहुत इज्जत दी है मुझे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फवाद। रजा भाई मुझे पूछना है? जी जी शुएब और देन फैजान प्लीज। अस्सलाम वालेकुम फवाद, शुएब जट बात कर रहा हूँ। हमेशा आप पॉजिटिव रहे हैं, आपके इंटरव्यूज भी हमने की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है।
कौम जो है, जर्नलिस्ट हो, प्रस्तार हो, सब ये बात करते हैं कि फवाद आलम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करे। कभी वो ज्यादती वाली बात ऑल्दो आप अभी कर चुके हैं, तो वो 10 साल जो जाया हुए, जिनकी वजह से जाया हुए, क्या आप उनको आज माफ करते हैं या आप कहते हैं कि अल्लाह एक दिन उनसे जरूर पूछेगा? क्योंकि पूरी कौम कहती है कि अगर 10 साल आपने क्रिकेट खेली होती तो आज आपकी 37 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां नहीं होती, बल्कि 50 सेंचुरी आप क्रॉस कर चुके थे, कई रिकॉर्ड आप बना चुके थे। तो क्या उन सबको अल्लाह की रजा के लिए माफ करते हैं या चाहेंगे कि अल्लाह ताला उनसे जवाब ले? शेख भाई बाउंसरे ना मारे। खैर, जहाँ पर आपने बात की कि मैं कॉन्फिडेंस रहता हूँ और मैं अल्लाह पे बिलीव रखता हूँ, जहाँ तक आप ये बात करते हैं माफ, देखें हम कौन होते हैं माफ करने वाले सर? अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। हम खुद इतना गुनाहगार हूँ, मैं खुद इतना गुनाहगार हूँ, पहले तो मैं अपनी माफिया मांग लूँ। मैं कौन होता हूँ मैं किसी को माफ करने वाला? और जहाँ तक आपने कहा कि 10 साल जाया, मैंने अभी इसका यही जवाब दिया कि 10 साल जाया नहीं हुए। और हाँ, उनका बहुत शुक्र अदा जो जो मुझ पर बिलीव रखते हैं कि वो कह रहे हैं कि इतनी सेंचुरीज होती हैं, इतने 50 होते। अल्लाह ताला शायद उनके ये जो थोड़े से जो वो कहते हैं ना कि जितना अभी आगे करियर है, जो थोड़ा बहुत है, जो खेलना है, अल्लाह ने जितना खिलाना है, शायद अल्लाह ताला उसमें दे दे। ये 10 साल में खेल के इतनी शायद इज्जत नहीं मिलती जितनी अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कम एरिया में दे दे। मेरे ख्याल से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरे नसीब में नहीं था, मुझे नहीं मिला, जब मेरे नसीब में होगा मुझे मिलेगा जरूर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैं जितना उसका शुक्र अदा करूँ कम है। देखें जो नसीब में वो मिल रहा है वो फिर कोई भी नहीं, वो कहते हैं ना कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज को। तो अल्लाह का शुक्र है, बस मैं अल्लाह का ही शुक्र करता हूँ। और बाकी सर ये चीजें जो हैं क्रिकेटर के करियर में चलती रहती हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं। आई थिंक बस अल्लाह ताला जो है इसी तरह सबको जो है इज्जत दे। जी शुक्रिया। शुक्रिया रजा भाई। फवाद पहले तो बहुत बहुत मुबारक। सीरियस वाले सवाल बहुत ज्यादा हो गए। फवाद, ये अर्तुगरुल गाजी वाली सेलिब्रेशन क्यों और इसके पीछे क्या थॉट है, थोड़ा जल्दी ये बता दे यार। थॉट मैंने पता नहीं पहले शेयर किया नहीं किया। मेरा थॉट ये था कि हम फर्स्ट क्लास का मैच जो न्यूजीलैंड में हुआ था, जब सेंचुरी बनाई थी, तो मैं और अजहर अली हम लोग ड्रेसिंग रूम में थे फर्स्ट क्लास में। तो वो जब मैच खत्म हुआ, मैच वैच जीते, तो बस मैं और ये बैठे हुए, तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, क्योंकि हम अर्तुगरुल आपको पता है सब देखते हैं। तो उसमें जब वो आता है जीत के, या जो भी वो जो इसको एक 10 मार्क सेट करके आता है जो भी है, तो वो आगे घोड़ा उठाता है वो। तो मुझे जो है अज्जू ने कहा कि यार फादी, मैं या आप में से कोई भी 100 करेगा ना टेस्ट में, तो हमने ये वाला सिग्नेचर करना है। तो मैंने कहा ठीक है, पता नहीं अल्लाह की क्या मर्जी थी, तो वो भाई उनके उससे निकला था। तो बस वो जब उधर न्यूजीलैंड में भी सेंचुरी हुई, तो वो याद रहा मुझे कि हमारी ये बात हुई थी। सो टिक करके मैंने वो किया, सब उसकी वजह से वो एक तरह से सिग्नेचर ही बन गया है। तो उसको लेके चल रहा हूँ बस। ये हुआ था, इसके पीछे ये एक राज है। Thank you. We will take now English question. First, I will request Arham to please ask question. Then Telford, please. What very very well batted. Congratulations. I have to ask you. You spent 10 years in the wilderness. You know, does this feel like? How does this feel coming back and making an innings like this? Such a wonderful innings after so long being ignored by the selectors. First of all, thank you so much. Feeling very good. Feeling very good. So it's happened in the the cricketer career. So sometimes you have to perform, sometimes you didn't. But very good. After a long time, I make a comeback for Pakistan team and perform like this. So feeling like out of the world. So that's thanks to God. Yes, Aram, please. You can ask. Hi, can I ask? Can I ask sure. English, please? Okay, no, thank you. Fawad, thank you. Congratulations on your test standard again. Do you feel that Pakistan are now in the position to actually win the game? Yeah, it's too early to say, but we have a very good situation right now because we lead, I think, 80 above runs. If we make more 20 to 30, 40 runs more added in this, so we have a very good chance to, upper hand on South African team, because you see the pitch is very slow and turning and bounce to bounce, and, so maybe if we got a very good chance, if we, lead like 140, around 150, so we have a very good chance to win this test match. Okay, gentlemen, thank you very much. Bas hame leave